Bismillahirrahmanirrahim. This is day 14 and last day of our CAPS calculations sessions. Today's chapter is about posology. What is posology? It is the science of dosage. And this is not that much complex. Dosage means most of the questions we are able to solve with simple common sense and cross multiplication. Then we'll see child doses. There are a couple of formulas for calculating the child doses, and then we will see the formula for body mass index BMI, and then for body surface area, and we'll see some common cross multiplication questions that we can face in a pharmacy while dispensing drugs to the patients. The first problem given here is very simple. Let's see. A child has been prescribed amoxicillin pediatric drops. The concentration in amoxil pediatric drops, amoxil is a brand name. It has the salt of amoxicillin. The pediatric drops in which the concentration of active ingredient is 100 mg per ml. And what is the dose? The dose is 0.8 ml 3 times daily. The pharmacist, means us, has only amoxil syrup. Now, this happens a lot of time in pharmacies that we do not have that concentration of the syrup or the drops available, and we give another concentration, and we can tell the patients, okay, consume this much of this syrup now. The pharmacist has amoxil syrup. This is for a little elder children. It has the concentration of 125 mg per 5 ml. What dose of syrup is equivalent? Now, very simply, now we know the concentration in pediatric drops. What is this? And the concentration in amoxil syrup that we have available in our pharmacy. So simple cross multiplication, we just find out what is the concentration in pediatric drops. This is 100 mg per ml. So do a simple cross multiplication, 100 mg in 1 ml. Then how much is in 0.8 ml? Because doctor have prescribed 0.8 ml to the patient, to the child patient. So one dose is equivalent to 80 mg in this pediatric drops. Now, as we have the syrup available and drops not available, now we will do the calculation. In the syrup, there is 125 ml in 5 ml. This 5 ml, 125 ml mg in 5 ml. So if 125 mg is in 5 ml, then 80 mg will be in how much mLs? We will do the calculation and find out that in 3.2 mLs, there is 80 mg of dose. So we can tell the patients to consume 3.2 ml of this syrup. ये क्लियर है जी सबको? वेरी सिंपल ना, एक बहुत छोटी सी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक दो लगा के हमने सॉल्व कर लिया इसको, डोजेज इश्यू को. किसी को समझ नहीं आई हो? समझ आ गई. क्लियर सर. क्लियर ना? अच्छा, अब इस तरह की कुछ मे बी विल फेस दिस काइंड ऑफ अदर calculations. Actually, they should be the part of chapter 1 to 3, where we have done the basic calculations, and we have seen questions like this, similar questions in APEC as well. Now comes the body surface area. This is kind of a main topic in this chapter. Now, what is how to calculate body surface area? This is the formula. There is one or two couple of tricky things that I will show you. To calculate body surface area, we take weight. W means weight in kg, and W to the power 0.425. This is standard. You need to remember this, 0.425. And then height in centimeter, and again a standard. This is like we are taking square of something. So here we are not taking the full square, we are writing 0.725. इसको उर्दू में हम कहते हैं ना कि 2 की पावर 2. तो इस तरह से ये इसकी पावर है h के ऊपर 0.725. विल सी कि इसको कैलकुलेटर के अंदर किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. फिर मल्टीप्लाई बाय 71.84. नाउ ये जो all of these three are constants, so we need to memorize this. I want you all to write this down. If you have a register available, write it down and notice that this is not a plus sign, this is multiply by sign. Be cautious of these signs within all the formulas that we have studied previously.
write this down along with these units, because this is also very important. Maybe in the question they give you another unit and you have to convert it into the required ones. जो तो 3-4 दफा लिख लेना वो फिर हैंड रेस कर ले। ये छोटी छोटी चीजें ये इंपॉर्टेंट होती हैं, इसको फॉलो किया करें। आंखों से देखने से बाजू का चीजें स्किप हो जाती हैं। सर वेट जो है वो केजी में होगा, हाइट सेंटीमीटर में, और आंसर हमें हमारा आएगा मीटर स्क्वायर में। सेंटीमीटर ऐसा है? स्क्वायर के अंदर। सेंटीमीटर स्क्वायर अभी में तो तक बीएस। जब तक मैं आगे नहीं जाता ना तो इससे आगे मूव नहीं करें। अभी आपका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर आने वाला है, क्योंकि स्टैंडर्ड फार्मूला के मुताबिक सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर फार्मूला आएगा, आंसर आएगा आपको। और ये लास्ट वाला कांस्टेंट है, बस ये पूछना था। हाँ जी, ये लास्ट वाला कांस्टेंट है 71.84। बी क्विक गाइस। ओके गुड। अब आई थिंक a technical thing here. With this formula, the answer is coming in centimeter cubic, so centimeter square. Now, most of the times we need in the answer in meter square. So we need to do a conversion. अब मुझे somebody tell me if we want to go from centimeter to meter, what we will do? We will divide it by what number? 100. 100, because there are, well done, there are 100 centimeter, 100 centimeter in 1 meter. But when we play around in this this square thing, things change. Now we will divide it by 10,000. This is standard calculation method. If we go to the Google and ask Google to convert 1 square meter to square centimeter, it will convert 1 square meter to 10,000 centimeters. And how is this? First of all, you should be remembering this just like any other units. Straightforward in your mind that when you have to convert from centimeter to meter, it will happen only in this formula, right? So you first of all, you memorize this, and to just take a logic of it. What is the logic? Let's see. When we talk about meter squares, we go two-dimensional here. Now this is 1 centimeter square. 1 centimeter in this direction and 1 centimeter in this direction. This is centimeter square. यहाँ तक क्लियर है सबको? ये एक बॉक्स जो पड़ा हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब है कि 1 सेंटीमीटर इस डायमेंशन में और 1 सेंटीमीटर इस डायमेंशन में। यस सर, क्लियर है। ये क्लियर है सबको? अब आप Yes. एक तरफ अगर ये यहाँ पे सपोज करें कि देयर आर 100 बॉक्सेस इन दिस डायरेक्शन एंड 100 सेंटीमीटर्स इन दिस डायरेक्शन, तो फिर हमें यहाँ पे एक मैश बनानी पड़ेगी पूरी। अब क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन के अंदर भी 100 सेंटीमीटर है, इस डायरेक्शन के अंदर भी 100 सेंटीमीटर है। अगर हमें ये टोटल का काउंट करना है ना तो हमें 100 इंटू 100 करना पड़ेगा, जिसका आंसर कितना आएगा 10,000। So this is a logic, no need to go further deep in this, just like a unit, remember it. तो सर हम इस तरह से भी तो ले सकते हैं ना 100 का स्क्वायर। यस आप सर, नहीं सिंपली ले, इसे टू देखें कर लें। आप जो कैलकुलेशन आगे आएंगे ना करने वाली, उसके अंदर एक स्टेप आप ऐड नहीं करें। तो आप क्या करें, आप रिमेंबर कर लें कि वी नीड टू डिवाइड और आंसर ऑलमोस्ट एवरी टाइम विद 10,000। ये याद रहेगा सबको कि इस फॉर्मूला के अंदर we'll have to divide the answer by 10,000, then we will get the answer in meter square. ये याद रहेगा सबको? यस सर। जी। मगर अगर हम स्क्वायर करते हैं या इंटू टू करते हैं वो गलत हो जाएगा। देखिए आप करके उसको देख लें, लेकिन वो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में पढ़ने वाली बात नहीं है। आप सिंपली आंसर लें और आप इसको 10,000 से डिवाइड कर लें। देयर कैन बी कपल ऑफ अदर वेज ऑफ डूइंग दिस, लेकिन मैं भी नहीं करता, ना मैंने उसको ट्राई किया है, क्योंकि चीज़ों को सिंपल रख के चलें, यही बेहतर रहता है।
अब यहाँ पे किसी बंदे ने ये गलती नहीं करनी कि सेंटीमीटर से मीटर में आ रहे हैं तो वो 100 से डिवाइड कर रहा है। ये चीज आपने जहन में बिठा लेनी है। कुछ चीजें याद करने वाली भी होती हैं, हर चीज अब लॉजिक से नहीं चलती होती। अब वहां पे ये वाली लॉजिक तो देखने बैठेंगे तो टाइम लगेगा ना। तो जस्ट रिमेंबर कि आपको 10,000 से डिवाइड करना है, आंसर विल बी इन मीटर स्क्वायर। छोटी सी चीज है, याद कर लें इसको। अच्छा, अब ये फार्मूला याद हो गया सबको। अब हम देखते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जो ये पावर के अंदर आई हुई है वैल्यूज, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। आप अपने अपने पास एक रजिस्टर कैलकुलेटर रखने, क्योंकि हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, और दुआ करें ये आपके कैप्स एग्जाम में आए, क्योंकि इसको सॉल्व करना आसान है बाकी क्वेश्चंस के निस्बत। अगर कोई और क्वेश्चन आता है मोल्स वाला तो उसके निस्बत इसको सॉल्व करना आसान होता है। और वो टेस्ट कर रहे होते हैं कि आपको फार्मूला आता है कि नहीं आता, और आप ये इसको कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर। आपको क्या पता है। अब हम देखते हैं, a woman is 180 centimeter tall. The value is already in centimeter. We don't need to convert it, otherwise convert it. If it is given in meters or inches, convert it into centimeters. 180 centimeter tall. This is height and weight is already in kgs, 70 kg. What is her BSR? Our goal of learning in this question is to how to solve this part. We will put the values in the equation. 70 weight comes here, 180 centimeter height comes here, and 71.84 is the constant. So these three are here. Now how to solve this power thing? You will have a key like this on your scientific calculator. The key will be like this. Can you see this key on your calculators? Those who are using mobile Yes. phones, जी सर they will see this x to power y thing. Those on mobiles. And this should be on your calculator. अच्छा, जब हम यहाँ पे लिखेंगे, बटन प्रेस करें, फिर इसके बाद लिखें 0.425 इज इक्वल टू करें, ये वाला आंसर आ रहा है आपका। की इन माय यस सर। साइंटिफिक कैलकुलेटर। जी यही आंसर आ रहा है। सर मुझे की नहीं मिल रही। अच्छा, इस तरह की को की पड़ी आपके पास, ये जो इस तरह की या ये x टू पावर y लिखा हो। नहीं सर। When I can find sir. अच्छा, सर सभी के पूरे लॉग कैलकुलेटर पे इस इरेज्ड तरह है की। मेरे ना, तो इसीलिए मुझे बड़ा पूरे गुस्सा हो रहा लॉग है के बहुत। साथ देखें, लॉग के साथ वाला देखें, लॉग के साथ तो ln है ना, in है वो। उसके लेफ्ट राइट पे देखें, मिस मैं ग्रुप में उसी लाइन भेजता में। हूँ, मैं ग्रुप में अच्छा, भेजता हूँ डिटेल। वो ना कोई एक पिक्चर x लेके रेज अपने टू ग्रुप के अंदर पावर सेंड 3 कर। है। अच्छा, अगर कैलकुलेटर पे मिटा है वो बटन, फिर तो शायद फाइंड करने में प्रॉब्लम होगी। सर आप अच्छा, कैलकुलेटर की बता दें। सभी के पास इस तरह का बटन ही आ रहा है, जो ये इस तरह के शेप में बटन यस है। सर। Yes. यस सर। चलो, इसी तरह के शेप में बटन कैलकुलेटर के ऊपर होता है। मैंने भी गूगल से इसकी पिक्चर नहीं निकाली, लेकिन ग्रुप के अंदर कोई बंदा शेयर कर दे। अच्छा, अब जब मॉडल आप का नाम लिखेंगे शेयर तो कर दीजिएगा, कैलकुलेटर का बहुत मसला हो रहा है मुझे। क्या शेयर कर दूं? मॉडल का नाम कैलकुलेटर का, मेरा कैलकुलेटर बहुत पुराना भी है और नहीं, मेरे ऐसा कैलकुलेटर है से कि बहुत ये different है। कैलकुलेटर आप नया परचेज कर लें। कैलकुलेटर का मॉडल ना कोई भी हो सकता है, वो साइंटिफिक हो, और बस 3-4 हज़ार अच्छी इतनी की प्राइस का हो, इससे ऊपर का हो तो वो इट विल वर्क। अच्छा, अब हम ये नेक्स्ट करें। जिनको ये आ रहा है ना कैलकुलेटर पे प्रॉब्लम, आप मोबाइल पे कर लें अभी के लिए। मोबाइल पे आपको इस तरह की नजर आएगी, x टू पावर y। आप फिर दूसरी तरह से भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अच्छा, अब ये दूसरा करें जी सारे, 180 की पावर 0.725। इसका आंसर यही आता सबका। जी सर। यस सर। क्या आ रहा है? चले जी, एक्सीलेंट। अब ये हमने एक, वी हैव लर्नड अ की, this key. This key is, I think they call it raise to, but this is a key we have learned. We have not learned it previously. So now, so simple cross multiplication is here. After multiplying, we will get this answer. This answer is in centimeter square. We need to divide it by 10,000 to get the answer in meter square. Now, is this everything clear? किसी को कोई मसला हो इसके अंदर? यस सर, क्लियर।
Clear, sir. Alright, अब ये आप इसको फार्मूला आपने लिख लिया होगा अपने पास। अब आपका टेस्ट है, अगला क्वेश्चन जो है, दिस इज योर टेस्ट। आप उसको करेंगे, फिर मैं आपको उसका सोल्यूशन बता दूंगा। चलिए इसको सॉल्व करें। सर वो 165 प्लस 10 है या -10 है? आप करें इसकी, आप करें, बनाएं लॉजिक इसकी क्या बनती है। एक औरत है, उसने 10 सेंटीमीटर की हील पहनी है, तो उसके साथ उसकी हाइट 165 बनती है। उसके साथ तो वो 10 सेंटीमीटर बाहर निकाल दें। अच्छा ठीक है, पेशेंट अगर एक आया इस तरह हमारे पास कि उसने हील भी पहनी है, तो वो हील का जो साइज वो माइनस कर दें। अच्छा ये जो कर ले वो अपना हैंड रेज कर ले, तसल्ली से कर लें सारे, कोई हरी अपनी करना, या इसको छोड़ना नहीं है कि ये बाद में हम कर लेंगे या कर लेंगे, ये करें अभी मेरे सामने। हाँ जी, वकास साहब ने कर लिया। बस आंसर निकाल रहा हूँ, हो गया। अच्छा जी, चलो जी, माशाल्लाह मिस रिदा ने भी कर लिया। यूनिवर्सिटी ने भी कर लिया। सर मुझे भी की मिल गई। चलें, माशाल्लाह। अब आप ना कैलकुलेटर को सॉर्ट कर लें इस मैटर को, ताकि वो, या आप ये कीज के ऊपर कोई मार्किंग कर लें, ताकि वो एग्जाम के दौरान आपको उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, अब मैं इसका रिवील करता हूँ, आंसर सभी देख लें कि यही आंसर आया आप सब लोगों का। Yes, sir. यही है. यस सर। ग्रेट, माशाल्लाह। चले जी, ये आपको अब एक जी ये जी। क्वेश्चन आ गया, एंड देयर इज प्रोबेबिलिटी कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए। तो वेरी सिंपल, और विद प्रैक्टिस ये सिंपली कैलकुलेटर के ऊपर लिख के इसका आंसर लिया जा सकता है, पेपर पे लिखने की जरूरत नहीं भी पड़ती इस तरह के क्वेश्चन। अच्छा आगे चलते हैं। A patient is to receive the following dose. This dose of BSA per day. What is the daily dose of drug given to the patient? This and this. चलिए जी, इसको भी सॉल्व करें हम जरा। अब एक स्टेप इसके अंदर और ऐड हो गया, सिंपल कैलकुलेशन का। बाकी वही है, आपने BSA ही फाइंड करना है। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों में से कितने बंदे, या सेल्फ असेस भी, आप असेसमेंट आप लोगों की भी हो जाएगी, कि छोटी छोटी अगर कोई आ जाती है इस तरह की कैलकुलेशन करने वाली, की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप, तो उसको आप कैसे हैंडल करते हैं। अच्छा जी, जो बंदा कर ले तो वो फिर हैंड रेस कर ले।
चलो जी, गुड। चलिए जी, जल्दी से कंप्लीट कर ले रिमेनिंग भी। कोई अगर स्टक है तो वो पूछ सकता है कि वो फलां जगह पे स्टक है तो वो क्या करे। अच्छा जी, मैं अब इसका आंसर रिवील करता हूँ। इसमें हुआ सिर्फ और सिर्फ ये है कि we need to find out the BSA just like before regularly, and then we need to do a simple cross multiplication that for 1 meter square the dose is 120 mg. This 120 mg means 120 mg per meter square. So per meter square means 1 meter square, the dose is 120 mg. And for 1.53 meter square, that is the answer we got. How much is the dose, and by doing the calculation we will have the answer. अब मुझे ये बताएं कि किसी का गलत भी आया था ये आंसर। अगर आया था तो मुझे बताएं, मैं देखूंगा कि वो कहाँ गलत आया, कहाँ गलती की आपने। सर मेरा 183.3 आया था, 0.6 की जगह 0.3 था, बाकी सही था। आप इस स्क्रीन के साथ ना वो रिकॉर्डिंग में जाके देख लीजिएगा कि ये जो पॉइंट के बाद की वैल्यूज होती हैं ये आपने सही दी हैं। अच्छा, थोड़ा सा ना बाजुकात ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, बहुत तो माइनर सर सा कुछ मेरा ऊपर नीचे हो जाता 182.4 आंसर आ रहा है है। आप ये मिलीग्राम्स पर। कैलकुलेशन ऊपर से चेक करनी शुरू करें, यही वाली वैल्यूज लिखी हुई हैं आपने सेम टोटल। यही है सब कुछ, लेकिन ये जो क्या कहते हैं, ये जो आपके 152271 आ रहा है ना, इसमें मेरा 15275 आ रहा है। ये बाकियों का क्या आ रहा है जी आंसर इसके अंदर? यहाँ पे 15271 ही आता है बाकियों का। जी सर। अच्छा मिस, ये आप ना कैलकुलेटर रिप्लेस कर लें, कल भी शायद आप ही के कैलकुलेटर के ऊपर और वैल्यूज आ रही थी तो मेरे थोड़ी सी कैलकुलेटर डेविएशन आ जाती है। थोड़ी सी डेविएशन इज ओके, कि यहाँ पे किसी का आ गया 59 तक, हाँ 58 वहां तक ओके आता है, लेकिन ये ज्यादा अगर डेविएशन आती है तो बी केयरफुल। ये सर कैलकुलेटर का मैंने, हो सकता है fault। सर यहाँ पे आपने 2 की जगह 3 किया ना 7 की वजह से, और मैंने वो मतलब पूरे डिजिट लिए थे, 4 डिजिट अच्छा लिए अच्छा, थे, ठीक है, चलें। उसकी ठीक है, वजह इट्स से। ओके, मैं समझ गया हूँ कि आपका आंसर यहाँ पे अगर 3 आ गया तो भी इट्स ओके। इट्स टेक्निकल एरर मेरे मेरे एंड से हो गया, मैंने यहाँ 2 और यहाँ पे 3 मेंशन कर देते। एनीवेज, ये तरीकाकार समझ में आ गया ना सबको? कैलकुलेशन डजंट मैटर, तरीकाकार जो है वो आना यस चाहिए सर, आपको। यस सर। चलिए जी जी, अब सर। हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यू मे इनकाउंटर इन योर कैप्स, सिंपल भी आ सकती हैं एंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस भी आ, अब पहले या बाद में कैलकुलेशन करने वाली हो। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड, ये फार्मूला बुक के अंदर नहीं है। दिस फार्मूला इज नॉट इन बुक, द पीएमआई बॉडी मास इंडेक्स, एंड आई हैड दिस क्वेश्चन इन माय कैप्स एग्जाम। तो ये आपको याद करना है, और ये भी बहुत सिंपल सा है। इसके अंदर ना, अब क्या है कि हर कोई बंदा अपने तरीके से करेगा इसको, आप भी अपने तरीके से करें। मैंने क्या किया था, अब ये पाउंड्स के अंदर भी आता है, पाउंड एंड इंचेस के अंदर आता है फार्मूला, और एक आता है केजीस के अंदर या मीटर्स के अंदर। मोस्ट प्रोबेबली आपको इसी या किलोमीटर या मीटर, टू आर द formulas for BMI. I think what I have done myself, I memorized both of these. That uh, whatever values I get in my questions, if I get pounds and inches in my question, I will use this formula. If I get kilograms in meters, I'll use this formula. Very simple. Let's take a look at the formula first. 703, this is constant. This is weight in pounds, and this is height with this scale.
be mindful of these small things. Just like here in the formula above, now there is no 703 here, just directly weight in kilograms and height square in meters. Height should be in meters. So how to calculate this? Only one thing I need to tell you how to take a scale. सभी को पता है कि स्केयर कैसे लेते हैं कैलकुलेटर पे? स्केयर का तो बटन होता है एक्स स्केयर, या आप प्रीवियस स्लाइड से भी कर सकते हैं ऐसे करके, तो आप आगे 2 लिखते हैं, उसका मतलब भी यही होगा। अच्छा, अब ये आई विल सजेस्ट यू टू मेमोराइज बोथ ऑफ दिस फार्मूलास, और जो भी आपको वैल्यूज आती हैं पेपर के अंदर वो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं, इससे वही वाला फार्मूला लगाएं, इसको सॉल्व कर दें। अगर ऐसा हो, जो कि क्वाइट पॉसिबल है, कि आपको एक चीज आ गई है पाउंड के अंदर और यहाँ पे इंचेस की बजाय आपको इसने या फीट दे दिया है या कुछ भी दे दिया है, अब आप तो दोनों भी नहीं यूज कर सकते, फिर आप क्या करेंगे? एक चीज पाउंड के अंदर आ गई है, अगर फॉर एग्जाम्पल वन थिंग इज इन पाउंड्स एंड अनदर थिंग इज इन फीट, विच फॉर्मूला विल यू यूज? फर्स्ट वाला यूज करेंगे, फर्स्ट उसको वाला कन्वर्ट we करेंगे will convert the inches in the feet हाँ, into वो कोई एक inches. चीज तो आपको मैच कर गई ना, या पाउंड मैच कर गया या केजी मैच कर गया या मीटर या इंचेस, तो वो आप देख लें अब इसमें तो कौन सा फार्मूला क्लोज पड़ेगा आपको, तो जो सेकंड वैल्यू अगर चेंज है तो आप उसे कन्वर्ट कर लें। ठीक है जी, अब ये आपके याद करने वाली चीज थी, इसके अंदर हम मजीद प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्योंकि सिंपल एक फार्मूला है, सिंपल आपने उसमें वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर आ जाना। ये आप लिख लें अपने रजिस्टर्स के ऊपर, क्योंकि वीडियो देखनी बाजू का जाके उसमें से ढूंढना ये वाली स्लाइड तो मुश्किल हो सकता है। अपने रजिस्टर के ऊपर समवेयर वेयर इट्स सेफ, इट्स नॉट गेटिंग लॉस्ट इन योर नोट्स, वहां पे आप इसको मेंशन कर लें, इन 2 फार्मूलाज को, इंटरनेट से भी मिल जाते हैं, इनको आप याद कर लें। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं इससे, चलें जी आगे। जी सर, चलो। जी सर। चलिए बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, अब शॉर्टली मैंने आपको बताना है, ये कुछ हमारी बुक के अंदर फार्मूला लिखे हुए हैं अबाउट चाइल्ड डोज कैलकुलेशन। There are small differences between all these formulas. For example, in this formula, you will have to remember all of these days. There is it's nothing like you memorize this one and you leave all others. Just remember all of these. It's easy. In one formula, you will have age in years plus 12. And in another formula, you will have simple age in age divided by 20. Here they say age plus 12. Here they say 20. Next, they say age in years till next birthday. Means up till the next birthday, what is the age of the child? माँ कह देती है कि जी इसका अब ये वाला आएगा 12वां बर्थडे आएगा इसका, तो वो फिर ये वाला फार्मूला यूज कर लें। इन दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, सिंपल वाला यूज कर लें। अच्छा, if the weight of the child is given in question, तो आप ये वाला फार्मूला यूज कर लें। if age in months is given, तो आप ये वाला फार्मूला यूज कर लें। अगर BS से दिया हुआ तो आप ये वाला फार्मूला यूज कर लें। except for these two, in the start आपको ये हर चीज के अंदर थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस हैं। इसके अंदर एज टिल नेक्स्ट बर्थडे दी हुई है इन ईयर्स, फिर वेट है, फिर मंथ्स के अंदर एज दिया और BSA के अंदर दिया। तो जो भी फार्मूला जो भी वैल्यूज के हिसाब से आप फार्मूला सेलेक्ट कर सकते हो, वो सिलेक्ट करके आपने आंसर निकाल देना है। इसकी लॉजिक क्या है? जो क्वेश्चन सेटर है ना, उसने वेट अगर दिया ना, तो मोस्ट प्रोबेबली वो उसने यही फार्मूला लगा के अपना भी आंसर कैलकुलेट किया होगा, जो उसने लगाया होगा, जो भी ऑप्शन पे ये सही ऑप्शन है। आई थिंक इसके अंदर कोई चीज इतनी टेक्निकल नहीं है, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे और ये दिए हुए हैं बुक के अंदर सारे। इससे आगे चल के कुछ हम इसकी प्रैक्टिसेस देख लेते हैं। ये आप याद कर लीजिएगा, तसल्ली से इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये बुक के अंदर आपको मिल जाएंगे। अच्छा, आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि इस द एडल्ट डोज ऑफ अ ड्रग इज दिस, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट डोज ऑफ अ चाइल्ड हुज बॉडी सरफेस एरिया इज दिस। अब as the body surface area is given, we are going to use this formula and we will get our result. Simple. Now, one thing, a question may arise that what are going to be the units in answer. Whatever the units are in here in the question mg, and you are putting the units here, answer will be in same units. इसके अंदर ये यूनिट्स का इतने कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देयर आर सम क्वेश्चंस वेयर आई से कीप एन आई ऑन यूनिट्स, लेकिन इसके अंदर इट्स ओके अनलेस दे राइट हियर दैट व्हाट grams, then you will need to convert it, otherwise this is going to be simple. Anyways, I believe that you can handle this.
Another question in here, the weight of the child is given and adult dose is given. So we'll just use this formula, Clark's formula, in which we use weight in kgs and adult dose, and we will get our answer. ये clear हो गया जी ये भी सबको? ये तो सिंपल है, चाइल्ड डोज कैलकुलेशन अगर आती है तो यही फार्मूले हैं, इसी के अंदर से आप अपने जो भी क्लोजेस्ट है उसको कर लें। अच्छा, अब इस चैप्टर के अंदर देयर आर अ फ्यू मोर क्वेश्चंस जिसके अंदर सिर्फ कॉमन सेंस रीजनिंग हमें चाहिए होती है, हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके अंदर वो पूछ रहे हैं कि यू हैव अच्छा कितनी कंसंट्रेशन है जी, 0.4 mg/ml कंसंट्रेशन है किसी चीज की, एंड यू नीड टू इन्फ्यूज द सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस अ डोज ऑफ 7.5 mg/kg/minute फॉर 80 kg पेशेंट। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये पूछ रहे हैं कि कितने ml/minute हमने अब इसको देने हैं। तो विद प्रैक्टिस ये आपको आ जाएगा। है ये बहुत ही सिंपल चीज कि सिर्फ आपको ये चेक करना है कि 7.5 mcg पर kg पर मिनट पर kg है। पहले इसको सॉल्व कर लें पर kg को, तो 80 kg पेशेंट है तो ये कितने बन गए 600 mcg, बिकॉज दिस इज इन mcg। अब बाकी पार्ट आने वाला है mg के अंदर, तो हम इसको अभी से mg के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। ये क्या सेंस डेवलप होगी विद प्रैक्टिस आपकी, फिर कुछ भी नहीं हुआ। बाकी हमें तो डोज इतनी रिक्वायर्ड है जी, अब 7.5 mcg/kg/minute जो हमने निकाली वो बनी 0.6 mg। अब ये हमने यहाँ पे देखा इस सोल्यूशन के अंदर कि 0.4 mg/ml था, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा ली, दैट 0.4 mg in 1 ml, then 0.6 mg will be in how much ml. This is our result, and we can say that 1.5 mg per minute, 1.5 ml per minute should be infused. So these kind of questions are here. You will build the sense when you practice. अब ये हमारा लास्ट कैलकुलेशन का सेशन था, और आप लोग मुझे जल्दी से 1 मिनट के अंदर मुझे कुछ फीडबैक दें कि इसके अंदर आपने कुछ सीखा भी है कि नहीं सीखा, और आपको कैसे लगे ये सेशन। सर मुझे एक बात करनी थी, एक सेशन ऐसा रख लें नेक्स्ट वीक में जिसमें हम अपनी सारी क्वेरीज लेकर आपके पास आ जाएं, सारे क्वेश्चन सॉल्व करके इकट्ठा करके, और कलेक्टिवली आप जो देखें जो आप क्वेश्चन लग रहा हो कि हाँ इसको हम सब बैठ के एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं, तो इससे हम लोग के माइंड में चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी और एक रिविजन भी हो जाएगा और सबकी क्वेरीज आप क्लियर ऐसा हो करें, जाएंगी। वो आप डेट खुद दे दें ताकि हम उस डेट मैं तक अपने तो आप को सब इसका, प्रिपेयर कर लें। हाँ जी, इसको थोड़ा सा और आगे ले जाएं आप, 1 वीक थोड़ा अब इसको और एक्सटेंड कर लें, तो वो हम डे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है इससे आगे, इसके अलावा बाकी और कोई? तो अच्छा था, सब कैलकुलेशन बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छा और इजी एक्सप्लेन करा आपने, बस प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी जी, थैंक यू। और बाकी लोग जो हैं वो जी सर बहुत ये ठीक है। मेरा ये क्वेश्चन था कि बहुत बहुत अच्छा आपने बहुत पढ़ाया है, बहुत अप्रिशिएट करता हूँ सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मेरा ये सवाल था कि आप मतलब जो क्वेश्चंस आपने पढ़ाए तो वही क्वेश्चंस मतलब उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, इससे आउट ऑफ कुछ भी? बेसिक्स ऑलमोस्ट यही होती हैं, कुछ क्वेश्चन चेंज किए होते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करना है। आई एम टॉकिंग अबाउट, और ये मैं सारे आपके आंसर करता हूँ। मुझे अब ये बताएं कि किसी को लगे कैसे हैं ये सेशन, एक हेल्पफुल रहे हैं आपके लिए? जी मारूफ, आप बोलें। सर सर मेरे लिए तो काफी बहुत अच्छे थे। अच्छा, सॉरी। इट्स ओके सर, ठीक है जी, काफी आसान थे, वकास, काफी एमेचर लेवल पे भी पता चल गया। चलें आपको यस अच्छे लगे, चलें जी वकास जी। सर मेरा काफ़ी इश्यूज थे, मतलब कैलकुलेशन मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी, तो मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल है काफ़ी, मतलब कि मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं, प्रैक्टिस की है तो प्रैक्टिस में भी चलिए काफ़ी गुड हो चीज़ें गया, क्लियर हुई हैं। वेल डन। और हमारे पास सदफ नहीं आया जी, कोई और? यस सर, सर बेस क्लियर हो गया, बेसिक्स सारी समझ आ गई हैं और पूरी स्टार्ट से लेकर एंड तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। चले बस वही कि हमारी माशाल्लाह जी। प्रैक्टिस है जो जिस टाइम सर क्वेश्चन देखेंगे प्रॉब्लम यही था ना कि तो बेसिक्स का ही नहीं पता था, अब एटलीस्ट हमें पता चल गया कि किस तरह से हमने इसको करना है। अब मेहनत तो हमारी अपनी है ना, आप लोग आपने तो अपना 100% दिया है, अब ये हम पे है कि हम किस तरह से यूटिलाइज करते हैं इस चीज़ को। चले जी, वेल डन। ये जो चुप रह रहे हैं बंदे, मैं चाह रहा था ये कुछ बोले हैं, क्योंकि ये थ्रू आउट द सेशन कुछ नहीं बोले हैं, कसम से बहुत सारे Not लोग थे। चले कोई the बात नहीं। child has been taught, and the good thing was कि आप कहते थे कि किसी एक को भी समझ नहीं आई ये तो बताएं, तो it was really really helpful. Thank you so much. जी वेलकम ऑल। चले जी, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि
प्रैक्टिस इसको कैसे करनी है आपने, ये मैंने आपको करवाए हैं मोनाश यूनिवर्सिटी से। अब आपके पास एक नई चीज़ है एपेक, जो आप न्यू है, वो हमने की नहीं है अभी तक। जो चीज़ हम कर लेते हैं वो तो हमें आ जाती है ना, हम चाहते हैं कि नई चीज़ मिले, नई प्रॉब्लम मिले, तो वो आपको एपेक से मिलेगी। अब आपने एपेक से प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आप दूसरी फाइल्स के ऊपर जाएं, जो भी आपको लॉगिन दूसरी मिलती है, इट विल बी पीस ऑफ केक। तो इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। नाउ हाउ टू गेट हेल्प व्हेन यू स्टक। इसका तरीकाकार ये है कि मैं हर वक्त अवेलेबल नहीं हो सकता कि मैं हर एक की क्वेश्चन को रिप्लाई करूं। आपने आपस में सेल्फ हेल्प करनी है, आपने ग्रुप के अंदर पोस्ट करना है क्वेश्चन। इससे फायदा होगा दूसरों को भी कि कहाँ पे स्टक हुए हैं। तो कोई आपको सोल्यूशन मिल जाता है, वेल एंड गुड, वो बेहतरीन तरीका है। उसके बाद शाहिद भाई हेल्प करने के लिए आप ग्रुप के अंदर मौजूद रहेंगे, मैं आपको उनको मैसेज कर देता हूँ इस सेशन के बाद। फिर अगर वहां से भी कोई चीज़ नहीं आपको हेल्पफुल होती तो आप मेरे पास इनबॉक्स में पहले वहां पे दें, ताकि सभी की हेल्प भी हो उससे। आप आज एग्जाम के अंदर कैसे अटेम्प्ट करेंगे आप कैलकुलेशंस को। एग्जाम के अंदर आप स्किप करेंगे पहले कैलकुलेशंस को, जो तो सिंपल लगेंगे आपको, आप उसको कर लेंगे। अगर वो कॉम्प्लेक्स हैं तो लीव इट फॉर द एंड, क्योंकि आपको थेराप्यूटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के अंदर वो असल टाइम वो चाहिए। अच्छा, फिर अगर कोई और क्वेश्चन है तो अब मेरा ख्याल है कि कुछ क्वेश्चन जो हमने ले लिए हैं और टाइम भी हमारा खत्म होने वाला है। अब ये सबको क्लियर हो गया कि हेल्प कैसे लेनी है आपने। हेल्प के लिए आपने डायरेक्टली मेरे इनबॉक्स में नहीं आना, आपने पहले ग्रुप के अंदर जाना है। क्योंकि मेरे पास ऐसा नहीं है कि मैं हेल्प नहीं करना चाहता, आई एम हियर टू हेल्प, लेकिन मैं अवेलेबल नहीं होता ऑल द टाइम कि मैं कैलकुलेशन क्योंकि करनी पड़ती है और देखना पड़ता है कि ये क्या क्वेश्चन है। तो बेस्ट ऑफ ऑल, बेस्ट विशेस एंड गुड लक फॉर योर कैप्स प्रिपरेशन और एग्जाम। हम इसको ख़त्म करते हैं। आई वुड अप्रिशिएट कि अगर आप एक रिव्यू इन पूरे सेशंस का ग्रुप के अंदर पोस्ट करेंगे। ठीक है जी, तो गुड बाय एवरीवन। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।